We always talk about investing in equity, but a lot of you wanted to know how to invest in property. So we thought, why don't we talk about a real estate strategy? But, before talking about how to buy houses and profit for them possibly, maybe we should do some pros and cons, and you can tell me in the comments what you think of it. Deal? So in this video, we're going to talk about the pros and cons of investing in real estate. So there are two ways of understanding whether an asset is worth investing in or not. The first way is to talk to people who've invested in that asset before and learn from their experience. The second way is to look at data and find out whether it's a good enough opportunity or not. Now, most of us don't actually look at data. Most of us talk to people. And you know what? Investing is a very personal experience. And every few decades, that experience changes because the economy changes. Let me give you an example. Our fathers or forefathers really believed in real estate because at that time, real estate was booming, right? Think about way back from the Industrial Revolution. No business could be built without land capital wages, as they called it. Then times changed, we moved into the information world. So the market also changed. So today, we're not going to talk about experience. We're going to look at data and look at the pros and cons. So before we talk about the cons, let's start about the good things of real estate investing, the pros. यार बहुत बोर हो रहा है यार. एक काम करें, गोवा चलते हैं. यार आइडिया तो अच्छा है बट पैसे नहीं है यार. अरे यार पैसे की टेंशन क्यों लेता है? म्यूचुअल फंड सुना है? बहुत सही है, उसे ही तोड़ देंगे. वैसे भी हाथ का मैल होता है पैसा, इसे बचाया नहीं उड़ाया जाता है. यार right now I don't have anything to break. I'm already having a home loan. So please don't suggest these things to me. यार 3 weeks later. Bro, so this time we are not going Goa. We are going international. Malaysia. बोल चलेगा? यार आइडिया तो बहुत अच्छा है बट होम लोन. बट ये बता कि तू कैसे जाएगा इस बार? अरे यार इक्विटी में किया था इन्वेस्ट, इस बार वो बेच दूंगा. सॉर्टेड है. Several months later. Bro, this time I have a plan you won't be able to say no to. What? It's Thailand. Beautiful beaches and beautiful, you know what, right? तो बता, चलेगा? यार मन तो बहुत कर रहा है बट होम लोन. हाँ ना, होम लोन. बट इस बार तू क्या तोड़वा रहा है? यार क्रिप्टो नहीं वो तो डूब गया. बट एफडी है ना, एफडी तोड़ेंगे इस बार. Many months later. और भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, पर तू बड़ा खुश लग रहा है. क्या हुआ बता? यार मैंने ट्रिप प्लान की है फैमिली के साथ यूरोप की. तो अब मुझे ये बता कि तू चल रहा है कि नहीं. अरे यार मेरा तो नहीं हो पाएगा. जितना भी सैलरी आता है सब बेटे की फीस भरने में चला जाता है. क्यों? अब कुछ बचा नहीं तोड़ने को तुम्हारे पास? नहीं यार, पर तू बता, तू कैसे जा रहा है? ना तो तूने कभी सेविंग्स किया ना तो कभी इन्वेस्ट. फिर ये सारा पैसा आ कहाँ से रहा है? यार तुझे याद है मैंने कुछ साल पहले होम लोन लिया था, बेच दिया. अभी वहीं से पैसा आया है और मैं जा रहा हूँ यूरोप. This is actually a great pro because it's difficult to sell a house. Every time there's an emergency, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, आपको कुछ निकालना है, you need that money immediately. Health crisis भी हो सकता है. आप सोचते हो यार मैं प्रॉपर्टी बेचूं क्या, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, यार प्रॉपर्टी बेचूं क्या. बट प्रॉपर्टी आप ऐसे डाउनलोड एक ऐप करके लॉग इन करके बेच नहीं सकते. इट्स नॉट दैट easy. You have so much of paperwork to do. There's so many parties involved. वो transaction भी easy नहीं होता है. So people say अगर बहुत ज़रूरत है तब मैं 1 महीना 2 महीना लगा के I will sell this home. So that friction is actually very good because people tend to hold on to real estate over a long period of time. And generally speaking, if you hold on to investment over a long period of time, you'll make some money, assuming nothing changes fundamentally. So this is actually a really good pro.
बच्चों, यह है तुम्हारे पिताजी के विल। और रमेश, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए छोड़े हैं 5 करोड़ नकद यानी कि कैश। और सुरेश बेटा, तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता ने छोड़ी है 5 एकड़ जमीन, मतलब बेसिकली 5 करोड़ ईच। तो आई होप बोथ ऑफ यू ऑल आर ओके विद इट। 10 years later. क्या हुआ भाई, परेशान लग रहा है तू? कुछ नहीं यार, वो पैसे का क्रंच चल रहा है थोड़ा। कैसे? यार बहुत अननेसेसरी खर्चा कर दिया यार। मतलब यॉट में, लग्जरीज विलास में, प्राइवेट जेट के बिल्स और ये सब खत्म हो गए यार। यार वो सब तो चल छोड़, ये बता कि तेरा कैसा चल रहा है? मेरा सब तो सही जा रहा है यार। जो प्रॉपर्टी वगैरह मिली थी ना, उस पर अपनी छोटी सी फैक्ट्री डाल लिया, अपना खुद का ब्रांड बना लिया है। फिर टाटा, रिलायंस है ना, इस पे अपना ही सप्लाई आता है। So this one is pretty obvious, right? Like the land itself is not just an asset. You can actually do farming on top of it. उसके ऊपर आप एक business start कर सकते हो and actually earn something from it. अब if you have bonds in the account, you can't start a business with it. It's just an asset that's there digitally, right? But with land, you can actually build on top of it. So that's quite interesting and it's definitely a big pro for investing in real estate. अब आप सोच रहे होगे कि next pro is going to be rent. एंड इट मेक सेंस, राइट? कि आपके पास लैंड है, वहां से रेंट की भी कमाई हो सकती है। ये शायद प्रो हो सकता है, हर महीना आपको कोई ना कोई रेंट आएगा। इंटरेस्टिंग। एक मिनट रुक जाओ। दिस एक्चुअली इज अ कॉन। Let's not think about the experiences our grandfathers, our fathers had with real estate because वो टाइम अलग था एंड रियल एस्टेट तब हल्का सा डिफरेंट था। आम आदमी की बात करते हैं, थोड़ा डेटा देखते हैं। अगर आप इसलिए खरीदना चाहते हो प्रॉपर्टी क्योंकि वहां से आप पैसा कमा पाओगे रेंट के जरिए, तो ये तो बहुत गलत डिसीजन है, राइट? हो सकता है आप इसलिए बाय करो कि आपको लगता है वो अप्रिशिएट करेगा इन वैल्यू, चलो वो अलग चीज है, बट रेंट के लिए तो आपको नहीं खरीदना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन हो सकता है, जितना आपने इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टी का दाम डिवाइडेड बाय द रेंट दैट यू गेट, सॉरी उल्टा बोल दिया, उल्टा कर दो इसको, द रेंट दैट यू गेट डिवाइडेड बाय द प्रॉपर्टी का दाम, आपको एक ROI मिल जाएगा उसमें। जैसे हम फिक्स डिपॉजिट में करते हैं, फिक्स डिपॉजिट 10 लाख डाला और बैंक बोलेगा भैया मैं आपको इतना परसेंटेज दूंगा। तो ये दोनों आपकी स्क्रीन पे ये देखो, दिस इज कॉल्ड रेंटल यील्ड, कि आपका जो प्रॉपर्टी का दाम है उससे कितना रेंट आ रहा है। ये 2, 2.5 मैक्स टू मैक्स 3% हो जाता है। इससे ज्यादा थोड़ा मुश्किल होता है करना। और आप फिक्स डिपॉजिट देखो, इससे कहीं ज्यादा है। तो अगर आपको सिर्फ पैसा ही बनाना है, पैसा से जहां पे आपको कुछ इनकम आ रहा है या कुछ अमाउंट आ रहा है, तो रेंट तो उतना सही नहीं है एंड दैट इज एक्चुअली अ कॉन। इसमें एक और चीज बोलना चाहूंगा, ये मैं आम आदमी के लिए बोल रहा हूं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, वो डेकेड से कर रहे हैं, उनको पता है कौन से जगह में कैसे लेना है, कितना बीघा जमीन, किससे बात करनी है, फ्यूचर में क्या होगा। वो लोग होपफुली शायद हम एक दिन लर्न ऐप में बुलाएंगे, वो शायद पढ़ा दें, बट आम आदमी के लिए रेंट अ रीजन टू बाय इज कंप्लीटली स्टूपिड एंड कंप्लीटली इनकरेक्ट। But if you don't want to be stupid, then you should definitely join Learn App Prime, which is a free program where over 3 days you learn the basics of trading and investing from scratch all the way to creating a trading system. And we'll do this live in a cohort over a period of 3 days. And I promise you, you will love it. But here's the catch. Although it's free, you still need to fill up this form. And we will take only smart people, motivated people into the cohort. So please fill this up quickly and I'll see you very soon over the next few days in that cohort. So what are you waiting for? Apply. So this one is obvious, right? Like it's also a pro, it's also a con. It's very difficult to sell real estate. So if I want to sell something and I really need the money, उतना आसान नहीं है। अगर आपके पास अपार्टमेंट है, 10 और लोग अपार्टमेंट बेच रहे हैं, एंड प्राइसिंग पावर भी आपके पास नहीं है, स्पेशली इन समथिंग लाइक से एन अपार्टमेंट। जो आजू बाजू लोग बेच रहे हैं, आपको उसको अग्री करना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा। प्राइसिंग पावर बायर के पास है और गवर्नमेंट के पास है या कॉर्पोरेट्स के पास है। उन्होंने आसपास कुछ बना लिया तो प्राइस अप हो जाएगा। अच्छे स्कूल्स आसपास आ गए तो फैमिली रेजिडेंशियल में प्राइस अप हो जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्राइसिंग पावर नहीं होता सेलर के पास। सो बेसिकली दैट्स द मेजर कॉन हियर, राइट? कि इमीडिएटली बहुत क्विकली आप बेच नहीं सकते हो। अगर आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है तो फिर शायद कॉन नहीं है।
तो बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व एंड बहुत इजीली नहीं बेच सकते हो जब तक आपको करेक्ट बायर नहीं मिल जाता, दिस इज अ कॉन। लेकिन एक एस्पेक्ट है रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के बारे में जो हमने बात नहीं की, शायद आप सोच भी रहे होगे कि जब कोई प्लॉट या लैंड खरीदता है, सो यू वेट फॉर दैट प्रॉपर्टी प्राइस टू गो अप। नाउ सी, एज एन एसेट क्लास वी कैन नॉट जज जनरली कि कौन सा प्राइस जनरली प्रॉपर्टी अप चला जाएगा, कितने परसेंटेज पे, कितने टाइम पे। इक्विटी वगैरह के साथ आप कर सकते हो, प्रॉपर्टी में इट इज वेरी एरिया स्पेसिफिक। एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, देयर कुड बी वन एरिया वेयर यू बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड एंड बिकॉज आसपास कोई डेवलपमेंट हो गया, मान लेते हैं ये बिल्डिंग है बहुत बढ़िया, कोई अच्छा चीज है ये जहाँ पे जॉब्स मिल रहे हैं शायद, तो यहाँ पे जॉब्स हैं, देयर इज दिस बिग MNCs कमिंग, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ लैंड विल एक्चुअली गो अप। इट कुड ऑल्सो बी an aircraft. I'm sorry for my drawing, but imagine a aircraft over here and you have a new airport over here जो बन रहा है, जिसको पहले नहीं पता था, the property will again go up. Now there is no strategy for us to actually know कि ये कब, कहाँ, कैसे हो रहा है। इसका उल्टा भी है, विकास भाई मुझे बता रहे थे कि गवर्नमेंट आएगी एंड गवर्नमेंट को हम कैसे ड्रॉ करो। दिस इज ओल्ड मैन ओवर हियर, इसके बाल हैं सारे, ऊपर के बाल नहीं है उसके, दिस इज ओल्ड मैन फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ही सेज कि यार इस एरिया में ना हमको लैंडफिल बनाना है, तो ये लैंडफिल है, यहाँ पे लैंडफिल आएगा। अब लैंडफिल के पास कोई नहीं रहना चाहता और हम एक रेलवे ट्रैक बनाएंगे यहाँ पर एंड यहाँ पर ट्रेन विल पास बाय। ये कौन हो सकता है, इसकी वजह से आपका प्राइस डाउन हो सकता है। तो क्योंकि कोई स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का एंड आप ये सब वेरिएबल्स देख रहे हो, दीज आर ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्वड इन अ हाउस गोइंग अप और डाउन। It's like buying an option. If it goes up, it goes up a lot, or nothing happens. We did not include this aspect. अगर आपको लगता है we should go deep into something like this to understand how real estate investing works, then we can create that. तो आप please comment करो and let us know. One last thing, अगर आप कोई standard model ढूंढ रहे हो, तो एक तरीका है and वो तरीका है called Real Estate Investment Trust या REIT. This is like an index fund but for property. इसमें क्या होगा, आप ऑनलाइन इसको खरीद सकते हो ब्रोकर के थ्रू। वंस यू बाय दिस, ये आपको लगभग 5 से 6% टाइप दे देता है, सबका अलग अलग होता है, बट इसमें आपने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर लिया, डाइवर्सिफाइड भी है एंड यूजुअली कमर्शियल प्रॉपर्टी में होता है। तो ये एक चीज़ है जो शायद आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। ये थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड है, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है, बिकॉज इसके पीछे कंपनीज है जो सिर्फ ये बनाते हैं। तो रीट इज समथिंग दैट मे बी हम मान सकते हैं 5 से 6% साल का बन सकता है इसमें। तो रीट के बारे में अगर जानना है, गो टू द डिस्क्रिप्शन, यूल फाइंड मोर। बट वहाँ पे प्राइम का भी फॉर्म है, भर दे यार, लर्न ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग 3 days, डू अ गुड जॉब इन फिलिंग ऑफ द फॉर्म एंड आई सी यू ओवर देयर। इफ यू लाइक दिस, please give a like and a subscribe and कुछ कमेंट में अच्छा बोलो, so we also feel great. See you in the next video.